We were discussing the topic of friction, and the theoretical part of friction was already covered in the previous classes. And from today onwards, we are going to discuss the numerical problems of friction. See, in friction, every numerical problem will depend on how fast you can come up with the correct free body diagram of the object concerned. So basically, what you have to train yourself in is to draw the correct free body diagram. So let us see what are the various cases that arise. In your syllabus, wedge friction is given, ladder friction is given, and belt friction is given. These are the three separate categories in which you have to practice problems of friction. I will write it down. Wedge friction. And I know that many of you might not be knowing what is the meaning of a wedge. We will come to that when we take up problems regarding wedge friction. Then ladder friction is there, in which problems regarding a ladder placed slantingly along the wall and touching the floor will be taken, and the contact surfaces of the ladder will be experiencing friction, and you have to draw the free body diagram of the ladder and do the analysis. And eventually the last topic in friction is belt friction. Now before coming to these three main topics of friction, we will have to go through a small practice session in which you will get acquainted with the correct procedures of drawing the free body diagram. So let us take up a question first. This is problem 6.3 from R.K. Bansal book. A very simple problem to start with. Okay. The force required to pull a body of weight 50 Newton on a rough horizontal surface is 15 Newton. Determine the coefficient of friction if the force is applied at an angle of 15 degrees with the horizontal. No figure is given. We have to draw the diagram first, not the free body diagram. Let us draw the diagram that depicts the problem itself. So this is a simple problem in which a body is being dragged with a force P at an angle of 15 degrees. So the problem is somewhat like this. A block is resting on the floor Let us see what is the weight of the block. The weight of the block is given 50 Newton. Okay, what will you do if the weight of the block is given as 50 kilogram? See, this is a general knowledge question and it is very important. And even in your final semesters, there are a lot of students who don't understand the difference between kilogram and Newton. If somebody says that I am giving you 50 kilogram weight, how many Newtons is that? Anybody? 50. No. 50 kilogram weight का मतलब है this is equal to 50 into 9.81 Newton. This you have to remember. If somebody says that the weight is 50 Newton, how many kilograms of weight is that? What will you do? 50 divided by 9.81. In that case, this is equal to 50 divided by 9.81 kilogram. See, kilogram is a unit of force in MKS system. Newton is the unit of force in SI system.
and generally a suffix of F is written under kg to indicate that this kg is kilogram force and not kilogram mass. Now, if I give you 50 kilogram mass, please pay attention, I am giving you 50 kilogram mass, not force. How many Newton is this? Or in other words, I will rephrase my question. What is the weight in Newton of a mass of 50 kilogram? 50 किलो का मास अगर आपको दिया जाए तो उसका वेट न्यूटन में बताइए. It will be 50 into 9.81. Again, continuing with the same discussion, 50 किलोग्राम का मास दिया गया है, वेट बताओ किलोग्राम फोर्स में. $50. ये डिस्टिंक्शन अगर आपको पहले नहीं पता था तो आज सीख लो अभी, और इसके बाद कभी भूलना मत. 3 चीजों के बीच का रिलेशनशिप सीखा है आपने अभी. द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन विच इज अ फोर्स, किलोग्राम फोर्स विच इज अगेन अ फोर्स, एंड सिंपल किलोग्राम विच इज मास. ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलता है कि 50 किलो का वेट है तो वो किलोग्राम फोर्स बोल रहा है, और अगर कोई बोलता है 50 किलो का मास है तो वो किलोग्राम बोल रहा है. सो किलोग्राम एंड किलोग्राम फोर्स आर डिफरेंट. समटाइम्स पीपल डू नॉट राइट दिस एफ, वो सिर्फ वर्बली बोल देते हैं कि इतने किलो का वेट है. ठीक है, बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो, बोलते हो भाई साहब 1 किलो टमाटर देना. 1 किलो जो है वो किलोग्राम फोर्स है या किलोग्राम है, आप बताओ मेरे को. किलोग्राम. इट इज किलोग्राम फोर्स. आप वेट में खरीदते हो, जो वो बैलेंस लगाता है, तराजू लेता है, एक तराजू के पलड़े में टमाटर डालता है और दूसरे तराजू के पलड़े में 1 किलो लिखा हुआ बाट रखता है. वो 1 किलो का बाट जो है वो 1 किलोग्राम फोर्स का वेट है. लेकिन अगर वहीं पे ये पूछा जाए कि 1 किलो टमाटर में कितना किलो मास है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/9.81. गलत. 1 ही किलो मास है. ये देखो, लुक हियर, 50 किलोग्राम मास हैज अ वेट इन किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 50 ओनली, नो डिफरेंस. ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि 1 न्यूटन वेट अगर टमाटर खरीदा है तो उसमें कितना मास खरीदा गया है, तब आप करोगे 1 डिवाइडेड बाय 9.81 किलोग्राम मास. ये याद रखना है आपको. क्लियर हुआ क्या ये चीज? इज दिस क्लियर और नॉट? अब इसको कभी मत भूलना, आगे जाके सेमेस्टर्स में आपको इस तरह का कंफ्यूजन बहुत बार होगा, बट यू शुड नेवर फॉरगेट इट. 1 किलोग्राम मास का वेट 1 किलोग्राम फोर्स होगा. न्यूटन में 1 किलोग्राम मास का वेट 9.81 न्यूटन होगा. बस इतना याद रख लो, बाकी कन्वर्जन आप अपने आप कर सकते हो. ठीक है, एनीवे, let us go back to the topic of friction. So this was a revision of your unit system. ठीक है, अब ये देखो, अपन अब इस पे आते हैं. 50 न्यूटन का वेट है, तो let us put a weight of 50 Newton, and then what else is given? The force is applied at an angle of 15 degree with the horizontal. So the force with which you are pulling is actually like this.
not horizontal. It is acting at an angle of 15 degrees. What else is given? The force required to pull a weight of 50 Newton on a rough horizontal plane is 15 Newton. तो इसका मतलब P भी दे रखा है. So this P is given as 15 Newton. Now what is the question? Determine the coefficient of friction. Mu कितना है? ये क्वेश्चन है आपका. Now see, in all questions of friction, as I told you, the only thing that you have to get bothered about is to draw the correct free body diagram. जब आप free body diagram बनाओगे तो सबसे पहले तो ये चीज रखना कि ब्लॉक को छोड़ के बाकी कोई भी वस्तु इमेज में नजर नहीं आनी चाहिए. और फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन वापस से मैं आपको बता देता हूं. इट इज द डिपिक्शन ऑफ अ बॉडी और अ कंपोनेंट which shows only the forces acting on it and never the forces that the body itself is imparting on others. यानी कि ये जो ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है ये इस जमीन को नीचे को प्रेस भी कर रहा है, लेकिन वो फोर्स अपन एफबीडी में नहीं बनाएंगे. अपन एफबीडी में कौन सी फोर्स बनाएंगे कि भाई वातावरण से, जमीन से, हवा से, आदमी के पुल से, किसी भी तरीके से, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज व्हाट आर द फोर्सेज दैट आर अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. तो अब इस नियम को लेते हुए अभी जो अपन ने बना रखा है ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें बॉडी तो फ्री है ही नहीं. आपकी बॉडी और सरफेस सब बना रखा है. फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बॉडी को फ्री करना है और उसके बाद उसके ऊपर लग रही सारी फोर्सेस को बनाना है. नाउ वन फोर्स इज 50 न्यूटन. ओके, when 50 Newton force is enacted upon the body, it will act through the center of gravity. So I will draw it like this. 50 Newton. Another force is 15 Newton pull applied at 15 degree to horizontal. So I will draw it like this. 15 Newton. And there is no harm in showing the angle. You can show the angle. ठीक है, ये भी हो गया. दो फोर्सेस कवर हो गई, वेट कवर हो गया, आपका पुल कवर हो गया. अब आप बताओ इसमें और कौन सी फोर्स बनाऊं मैं? But before drawing the frictional force, don't you think that the ground will be exerting a normal reaction R on the body? Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन चूंकि बॉडी पे ऊपर की तरफ लग रहा है, आई कैन ईदर पुट द नॉर्मल रिएक्शन हियर. अभी इसको यहीं रख लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर, एंड देयर विल बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which will be in the opposite direction to impending motion. Impending motion की बात मैंने आपको पिछले क्लास में समझाई थी. Just about to start. Just about to start. Now tell me, if you are considering this sort of equilibrium in which the motion is just impending, what will be the direction of frictional force on the block? Will it be in the left direction or the right direction? Left. It will be in the left direction and it will act at the contact surface. So what I will do is I will put a backward vector like this at this surface and simply put mu into R. The force of friction is always mu R. So whenever you want to put a force of friction in the free body diagram, you have to know the value of R. And there is also one very very popular misconception कि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा वेट के बराबर होता है. ये मिसकॉन्सेप्शन भी आज आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है. मिसकॉन्सेप्शन का मतलब ही गलत धारणा है. सी, if a body is simply resting on a surface
and you are not pulling it, you are not lifting it, you are not pressing it, you are not doing anything. It is simply resting on the surface. It has got a weight of, let us say, 10 Newton. What will be the value of normal reaction? You guys tell me. आप कुछ नहीं कर रहे हो ब्लॉक को, ये सिर्फ रखी हुई है जमीन पे, 10 न्यूटन का वेट है. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जमीन का बॉडी पे? कितना है? 10. It will be 10 न्यूटन. ठीक है. Now the 10 Newton body is again resting on the surface, and apart from its own weight, you are pressing it down with a force of 5 Newton. आप अपनी हाथ से इसको नीचे को दबा भी रहे हो. What will be the value of normal reaction? 10 - 5. कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन? 5 होगा या 15 होगा? 10 - 5. 15. It will be 15 Newton, because you are considering the equilibrium of forces in the vertical direction. 5 Newton is acting downward, 10 Newton is acting downward, and normal reaction is acting upward. And since the body is neither moving in the upward or the downward direction, that means there has to be vertical equilibrium. So the total sum of downward forces must be equal to the total sum of upward forces. So R must be equal to 10 plus 5. This is the logic. So now see, your normal reaction is 15 Newton, whereas the weight of the body is only 10 Newton. ठीक है. अब ये केस आप दूसरा करके देखो. Again, the 10 Newton body is resting on the surface. Normal reaction is acting upwards, but you are trying to lift the block with a force of 2 Newton. आपने इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लगा के पकड़ा हुआ है, लेकिन ये उठेगी तो है नहीं, क्योंकि आप जब तक 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओगे ये जमीन से उठेगी नहीं. तो आपने 2 न्यूटन के एफर्ट से इसको उठाने की कोशिश करके पकड़ी हुई है. 10 न्यूटन इसका खुद का वेट है. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ? It will be 8 Newton. So now the concept of normal reaction is clear to you. So if at any time you feel the impulse coming from within कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, अरे वेट के बराबर होती है वो तो हमेशा, ये धारणा आज निकाल दो मन से. नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है हर केस में, एंड इट इज ओनली इक्वल टू वेट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इट. ऐसे खाली केस में ही नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगी. अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड. The 10 Newton block is resting on the surface. The reaction is acting upward. I am not pretty sure about the reaction because there is some additional information coming. I am pulling the block exactly horizontal to the surface with a force of 2 Newton. अब ये चल रही है नहीं चल रही है इसकी बात अपन कर ही नहीं रहे. मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ R कितना होगा. सर 10 ही रहेगा सर, उसको इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा. कितना है R? 10. It will be 10 Newton. Very good. Because in this case, the external applied force is purely horizontal and it is not affecting the vertical equilibrium. But instead of putting this force in the purely horizontal direction, if I put it at an angle of theta, in that case, this 2 Newton force will have a vertical component and a horizontal component. This will be 2 sin theta. This will be 2 cos theta. And in this case, your reaction will be equal to 10 minus 2 sin theta. minus 2 sin theta. ये concept आपको पता होना चाहिए. ठीक है? So in every case, for all the problems of friction, the normal reaction has to be calculated so that the force of friction can be eventually put in place. तो ये ध्यान रखना है आपको.
Okay, with this discussion covered, we are equipped much better to start with the original problem. ये अपनी problem है अपने पास, ठीक है? So in any case, यहाँ पर आपको दिख रहा है normal reaction weight के बराबर नहीं होगा, सीधी सी बात है. But what you have to do is diligently, without getting distracted, आप तो सिर्फ vertical equilibrium बनाओ, horizontal equilibrium बनाओ और कुछ नहीं करना, ठीक है? So I will draw the free body diagram once again with a small difference. क्या difference करूंगा? ये 15 न्यूटन जो है वो 15 डिग्री पर जो एक्ट कर रही है, I do not like this. So what am I going to do? I am going to convert it into two components so that all the forces are either purely in the horizontal or purely in the vertical direction. Once I get a situation like that, then I will apply the equations of equilibrium of summation of all the horizontal forces is 0 and summation of all the vertical forces is 0. तो ये हासिल करने के लिए मैं इस एंगुलर फोर्स को चेंज करना चाहता हूं. So what I will do is I will remove this 15 Newton from the picture and I will put its two components in place. 15 cos 15 degree and 15 sin 15. ठीक है? अब देखो मेरे पास कितनी टोटल फोर्सेस है? 1 2 3 4 5. Now I have 5 forces and all the 5 forces are aligned either in the vertical or in the horizontal direction. ठीक है? तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं. अब मैं पहले, अच्छा अपना उद्देश्य क्या है इसमें ये भी देख लें. हमें कुल मिलाकर के म्यू निकालनी है, बस ये अपना ऑब्जेक्टिव है. सो नाउ प्लीज गिव मी फ्रॉम दिस फिगर, गिव मी द फर्स्ट इक्वेशन कि अगर मैं ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 रखता हूं तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, आप बताओ मुझे. mu r is equals to 15 cos 15. Absolutely right. Mu r is equal to 15 cos 15. ये पहली इक्वेशन बन गई. मैं इसको इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में लगाना चाहूं, then I will do it in a more precise fashion like this. ठीक है? I will say 15 cos 15, क्योंकि ये राइट साइड में लग रही है तो मैं पॉजिटिव लूंगा और म्यू आर लेफ्ट साइड को लग रही है तो मैं नेगेटिव लूंगा. माइनस म्यू आर इक्वल टू 0. एंड नाउ व्हेन आई टेक म्यू आर टू दिस साइड आई गेट 15 cos 15 equal to mu r. But since there are only two forces in the horizontal direction, आपने जो पहले कहा वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. आपको ये समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0 फिर इस फॉर्मेट में फिर इस फॉर्मेट में 2-3 लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट रोट इट सो दैट यू रिमेंबर कि इसका एक्चुअल प्रोसीजर ऐसा ही है. सो इन योर एग्जामिनेशन टू सेव टाइम you can simply say, if I apply summation fh equal to 0, I directly get mu r equal to 15 cos 15. अब ये 15 cos 15 तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो जाएगा. जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना है मेरे को. एनीबॉडी? सर म्यू की वैल्यू 0.3141 है. नहीं, म्यू पे अपन आएंगे. इट्स गुड दैट आपने इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया है. मैं इसको धीरे धीरे पूरी क्लास को परकुलेट करना चाहता हूँ. So the students who are very sharp and who have already done this problem, congratulations, but please be patient and go with the class. मेरे को ये बताओ म्यू आर की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटर से बताओ. 14.48 न्यूटन. 13 14 14 14.55. ठीक है. अब देखो ना तो मुझे म्यू पता है ना आर पता है, तो इन दोनों इस इक्वेशन से मेरे को म्यू की वैल्यू अकेले तो पकड़ में आएगी नहीं. सो नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड इक्वेशन, दैट द इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज 0. सो लुक एट द वर्टिकल फोर्सेस. 15 sin 15 ऊपर को है तो पॉजिटिव. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है तो ये भी पॉजिटिव. 50 न्यूटन नीचे को है तो ये नेगेटिव. तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? आई विल कंस्ट्रक्ट दिस एज
For summation of vertical forces equal to 0, I have 15 sine 15 plus r minus 50 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से मेरे को r पकड़ में आ जाएगी और r की वैल्यू जब मिल जाएगी तो इस r को जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरे को म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। So now please complete this calculation and tell me what is the value of mu that you get. अब ये कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं और अब मेरे को म्यू की वैल्यू बता दो। 0.314 312. Let us see whether the answer is correct or not. This is the correct answer. ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब अपन आगे चलते हैं। Now we are going to take a much more complicated problem. मैं डायरेक्टली आपकी कॉम्प्लिकेशन लेवल को 1-2 डिग्री बढ़ा रहा हूं और ये कंप्लीटली सक्सेसफुली आपको समझाने के बाद ये प्रॉब्लम मैं आपको अपने आप करने को दूंगा। ठीक है, ये प्लेन सरफेस पर है और मैं यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस पे प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम भावी कट्टी। दिस बुक इज ऑल्सो विथ यू। इट इज एग्जाम्पल 5.2. It is solved. So you can, once you understand it from this lecture, you can go back and refer it in your own textbooks. ठीक है, क्या बोलता है? What should be the value of theta? यानी कि इस inclined plane को देखो, इसका एंगल थीटा है। inclined plane पे 900 न्यूटन का ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक 300 न्यूटन का ब्लॉक रखा हुआ है और इस 300 न्यूटन के ब्लॉक को धागा बांध करके यहां से पकड़ रखा है। सो देयर विल बी टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है, तो अगर ये 900 न्यूटन नीचे को फिसलने लग जाए तो भी 300 न्यूटन नीचे को नहीं जा सकती क्योंकि ये धागे से पकड़ रखा है इसको। दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज इट आस्किंग कि थीटा कितना हो that will make the motion of 900 Newton block down the plane to impend। ये देखो impending motion का प्रॉब्लम आ गया ये, यानी कि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते चलें, इस प्लेन के स्लोप को बढ़ाते चलें तो एग्जैक्टली कितने थीटा की वैल्यू पे ये 900 न्यूटन का ब्लॉक जस्ट फिसलना चालू होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस फिगर इज कि यहां पर भी फ्रिक्शन होगा, यहां पर भी फ्रिक्शन होगा। दूसरी चीज आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो याद रखनी है वो ये है, जितनी भी कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस मिले उन सब पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। एवरी सरफेस विल गेट नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस आ रही है तो यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, यहां पर कॉन्टैक्ट आ रहा है तो यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। ठीक है, सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, let us go for the free body diagram directly। ठीक है, देखें और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस इज 1/3। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन एडिशनल जो दे रखी है, दैट इज म्यू इज गिवन एज 1/3। एंड प्लीज रिमेंबर, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, म्यू इज डायमेंशनलेस, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो म्यू दे रखा है, थीटा निकालना है कि कितना थीटा होगा कि 900 न्यूटन की ब्लॉक जस्ट इंपेंडिंग मोशन हो जाए नीचे को फिसलने के लिए। ओके, सो आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द 900 न्यूटन ब्लॉक फर्स्ट। तो पहले 900 न्यूटन के ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। From the center of gravity, the weight of the block will act. So simply put 900 Newton like this. ठीक है, और since the motion is impending in the downward direction, the force of friction will be
and acted in the upward direction along the plane. But the force of friction always requires you to find the value of the normal reaction first. So let us say that the normal reaction between this block and the plane is perpendicular like this, and let us put it as R1. And if the normal reaction is R1, then the friction will be mu R1. Okay? Does this cover all the forces acting on the 900 Newton block, or do you think there will be other forces? इस फिगर को देखो, आपको क्या लगता है कि इस 900 न्यूटन की फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पर जो बनाई है, इसमें एक फोर्स तो फ्रिक्शन की आ गई, एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और एक फोर्स इसका वेट 900 न्यूटन नीचे को आ गया. क्या ये सफिशिएंट है क्या? और कोई फोर्स छूट तो नहीं गई मेरे से? सर 300. ये इसके ऊपर एक 300 न्यूटन भी रखा हुआ है. नाउ दिस इज वेयर अ लिटिल ट्रिकी पार्ट कम्स. कई जने बोलेंगे कि यार इसके ऊपर 300 न्यूटन ऐसे रखा हुआ है, तो इसका वेट जो है वो इस पे ऐसे लगेगा. ये गलती है. वेट of an object placed at over some other object is never applied to the object. The only thing that is applied to the object is the normal reaction. यानी कि अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा हूं. ये वापस से एक बॉडी एक सिंपल जमीन पे रखी हुई है. आप ये बोलते हो कि नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स exerted by the ground on the body. ग्राउंड बॉडी पे जो फोर्स लगाती है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है. लेकिन आपसे शायद किसी ने ये उल्टा सवाल नहीं पूछा कि ये बॉडी ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रही है. तो एकदम से आप लोगों का आंसर होता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना बॉडी का वेट है वो वेट ग्राउंड पे लग रहा है. दैट इज द रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि बॉडी की वेट कहाँ लग रही है? ग्राउंड पे नहीं लग रही है. बॉडी की वेट बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रही है, इस पॉइंट पे लग रही है. तो अब कुल मिला के सवाल ये होता है कि अगर बॉडी का वेट उसके सीजी पे लग रहा है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, तो जमीन पे आखिर फिर लग क्या रहा है? जमीन पर भी आर ही लग रहा है. तो द सिचुएशन इज लाइक दिस. R is the normal reaction force exerted by the ground on the body, and R is again the force exerted by the body on the ground also. तो दोनों एक दूसरे पे R फोर्स लगा करके कैंसल आउट हो जाती है. फिर आप ये बोलते हो कि इस R की वैल्यू कितनी है. तब फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस बॉडी पे कोई दूसरी इन्फ्लुएंस तो नहीं है? तो आपने कहा कि नहीं है साहब. तो आप कहते हो कि अच्छा अगर ऐसा है तब R की वैल्यू mg के बराबर आ जाती है. दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. तो अब इसी पूरी कहानी के बेसिस पे अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू attempt the free body diagram of the 900 Newton block. I know that another block having some weight is placed over it like this. So what should be the magnitude and direction of force of interaction between this body and this body? क्या मैं इसको ऐसे बनाऊं या more appropriately क्या मैं इसको सीधे सीधे ये बोल दूं कि चूंकि ये ऊपर वाली बॉडी इसके ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन डालेगी, तो मैं ये एक फोर्स बनाऊं और उसके बाद मैं इसको नाम दे दूं नॉर्मल रिएक्शन 2. दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर. ये बन गया अब आपका फ्री बॉडी डायग्राम. ये समझ में आया क्या आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. क्लियर हो गया ना सबको? यस सर.
अगर मैं ऊपर वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा होता, ये सेकंड बॉडी नीचे पड़ी हुई है और ये स्लोप है, ठीक है। अगर मैं 900 न्यूटन वाली का ना बनाते हुए, दूसरी बॉडी का वेट कितना है, 300 है, अगर मैं 300 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा होता तो इस 300 पे ये R2 कैसे लगता, ऊपर को लगता। गॉट इट? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो R2 फोर्स अगर आप नीचे को बनाते हो तो इसका मतलब है 300 न्यूटन की बॉडी 900 न्यूटन पे कांटेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन R2 नीचे को ऐसे लगा रही है। और अगर आप इसको ऊपर को बनाते हो तो इसका मतलब है इसी सेम कांटेक्ट पे 900 वाली बॉडी 300 पे लगा रही है। और चूंकि ये दोनों इक्वल होंगे, R2 इधर को जो 900 लगा रहा है और R2 इधर को जो 300 लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सेम है, इसीलिए इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड नॉर्मल रिएक्शंस। So whenever you get a coupling of bodies like this, always remember the contact force should be mutually opposite and equal to each other. तो अपन अभी किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, 900 वाले का बना रहे हैं, तो उस पे R2 ऐसे लगेगी, ठीक है। And now we can say that we have taken into consideration all the forces. अब कोई फोर्स रह गई क्या, देख लो एक बार, आप अपने आंखों से देख लो। इस धागे पे एक टेंशन भी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये टेंशन की फोर्स इस 900 के एफबीडी या फ्री बॉडी डायग्राम में आएगी क्या? नो सर। 300 and 900 900 की फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि टेंशन किस पर एक्ट हो रही है, 300 वाले पे कनेक्टेड है, और 300 की फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन अपीयर होगी। तो हालांकि सिस्टम के अंदर एक टेंशन की फोर्स पड़ी हुई है, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर 900 न्यूटन ब्लॉक, इस पे नहीं आएगी, ठीक है। तो अब अपन ये कह सकते हैं 900 न्यूटन पे एक फ्रिक्शन इस जमीन पे आ रही है, 900 न्यूटन पे एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, 900 न्यूटन पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से आएगा, 900 न्यूटन की वेट खुद नीचे को एक्ट करेगी, और एक फोर्स और छूट रही है, आप बताओ कौन सी है? सर फ्रिक्शन बिटवीन 900 and 300। वेरी गुड भाई, जब ये बॉडी नीचे को फिसलेगी तो 300 तो चल नहीं पा रहा, तो मतलब इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन होगा। तो अब अपन को एक फोर्स और लगानी पड़ेगी कि इस सरफेस पे, टॉप सरफेस पे कितना फ्रिक्शन हो रहा है। मेरे को आप सबसे पहले तो इस फिगर में देख करके डायरेक्शन बता दो। What is the direction of frictional force between these two bodies? इधर को है या इधर को है, सोच के बताओ। डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड? upward अपवर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि जब 900 न्यूटन नीचे को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इंपेंड होगी, तो 300 न्यूटन चल नहीं रही है, तो 300 न्यूटन को एक इन्वर्टेड फ्लोर की तरह मानो, तो उस फ्लोर पर ये बॉडी रगड़ खाते हुए नीचे को आ रही है, तो फ्रिक्शन जो है इस बॉडी के मोशन को ओपोज करेगा और लगेगा ऊपर को। सो वंस अगेन the force of friction is upward like this. अब ये सारी फोर्सेस आ गई। देयर आर हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? 1 2 3 4 5। लेकिन अब मेरे को कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो ये लगानी है। तो इसके लिए तो ये फोर्स सिस्टम काम करेगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, whenever you get a problem of inclined plane, you should always resolve the forces along this coordinate axis. So this should be your horizontal direction and this should be your vertical direction.
नॉट इन द ट्रेडिशनल वे। इस पे मत करना, ये चीज और याद रखना है फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इस टेनेट के साथ में अगर अपन आगे बढ़ें तो अब मैं इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे सही करूं, ये देखो। सो नाउ this is my desired coordinate axis system, the vertical direction and the horizontal direction। ठीक है, म्यू r1 ऑलरेडी मेरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है, म्यू r2 ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है, r2 और r1 दोनों मेरे वर्टिकल डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। सिर्फ जो मेरे को खटक रहा है वो है ये 900 न्यूटन, जो कि बिल्कुल वर्टिकली नीचे को लग रहा है। So what should I do? I will draw a dotted line like this and try to find out what is this angle। ये भी चीज मैंने आपको समझाई थी कि आप रट लेना, whenever you get an inclined plane of any angle theta and there is a block resting on the plane, and if you have the weight acting downwards and you have the normal reaction line like this, then this angle will be theta। ये आपको याद ही रखना है हमेशा, ताकि बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़े ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ठीक है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली थीटा कह सकता हूँ इस वाले एंगल को? अब ये देखो, ये मेरी डायरेक्शन आ गई, अब इन दोनों में मेरे को रिजॉल्व करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से दैट दिस कंपोनेंट इज 900 cos theta and this component is 900 sin theta, and once I have resolved it into components I will remove the original force itself। ये चीज कई बार लड़के करना भूल जाते हैं और आप कंपोनेंट्स भी ले लेते हो और ओरिजिनल फोर्स भी ले लेते हो, होती है ये गलती कई बार। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। नाउ I have successfully resolved all the forces either along the desired vertical axis or along the desired horizontal axis। So this is the situation now। Now I have 1 2 3 4 5 6 forces। ठीक है, अब इन 6 forces को लेकर के मैं वापस से यही खेल खेलूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सारी फोर्सेस को इक्वेट करके 0 करूंगा, फिर वर्टिकल डायरेक्शन की सारी फोर्सेस को इक्वेट करके 0 करूंगा। मेरे को क्या पता करना है? I have to eventually find the angle theta। तो जब तक मेरे को थीटा नहीं मिल जाता मैं ये सारे गेम खेलता रहूंगा। So let us see what is going to happen। अब आप लोग एक काम करो, इस फिगर को देख करके, मैं ये फिगर आपके सामने रखता हूं, आप मेरे को ये अप्लाई करके बताओ। समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0। Apply this equation and tell me what will you get। Look at the figure। Mu R2 plus mu R1 is equal to 900 sin theta। Very good। Mu R2 plus mu R1 is equal to 900 sin theta। ये एक इक्वेशन बनाई। Now see whether your task is accomplished with this single equation। क्या आपको mu पता है क्या? Yes, you know the value of mu। mu की वैल्यू इज 1/3, ये गिवन है, तो mu तो पता है, we know mu। क्या आपको R1 और R2 की वैल्यू पता है क्या? No, you don't know it। तो जब तक आपको R1 और R2 नहीं पता, आप इस थीटा को पता नहीं कर सकते इस इक्वेशन से। चलो कोई बात नहीं, एक इक्वेशन से नहीं पता लगा तो दूसरी इक्वेशन बनाओ। Apply summation vertical equal to 0। Look at the figure again and tell me। ये देखो, इसमें 3 forces हैं, 1 force, second force, third force। R1 is equals to हाँ, R2 plus 900 cos theta। very good। So the correct equation is R1 equal to R2 plus 900 cos theta। So what we can do is, अपने पास यहां पर 3 अननोन थे, R2 नहीं पता, R1 नहीं पता,
थीटा नहीं पता, थीटा पता करना है। तो अपन R1 जहां पर आ रहा है उसको R2 प्लस 900 cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यूजिंग, तो आप अपने आंसर बुक्स में कैसे लिखोगे, गिव एवरी इक्वेशन अ नंबर लाइक दिस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे रोमन में देना भी जरूरी नहीं है, यू कैन सिंपली पुट इट लाइक दिस 1 and 2, ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू पुट इक्वेशन नंबर्स। अब आगे क्या लिखोगे आप, यूजिंग 2 in 1। तो इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 में यूज करूं तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, ये R1 जो दिख रहा है उसकी जगह R2 प्लस 900 cos थीटा सब्सटीट्यूट कर देना है। सो आई विल डू दैट। लेट मी राइट म्यू R2 प्लस म्यू इंटू, अब यहां पे R1 आ रहा है, R1 की जगह ये पूरी चीज डालूंगा मैं, तो दिस विल बी म्यू R2 प्लस 900 cos थीटा equal to 900 sin theta. Now I have this third equation in which there are only two unknowns. अब मेरे को अगर कहीं से R2 की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। I can do that easily, but I need the value of R2 from somewhere. ठीक है, तो अब R2 की वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करें, अपन ने पहले 900 वाले ब्लॉक के दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को खत्म कर लिया है। अपन ने समेशन FH इक्वल टू 0 भी यूज कर लिया, समेशन FB इक्वल टू 0 भी यूज कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, तो अपन इसमें से आगे नहीं चल सकते। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो एंड कंस्ट्रक्ट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। तो अब मैं यहां पर ही इसके सेकेंड ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, आप लोग इसके साथ साथ चेक करते रहना कि ये सही है क्या। 300 acting vertically downwards, reaction R2 now acting perpendicular to the contact surface in the upward direction on 300 Newton. ठीक है, the tension force of the string acting upwards और क्या लगेगी इसमें बताओ, कोई चीज छूट गई क्या मेरे से? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, भाई जो फ्रिक्शन की फोर्स 300 और 900 के बीच में है वो दोनों ब्लॉक पे लगेगी। अगर 900 की ब्लॉक फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रही है तो वही सेम फ्रिक्शन 300 की ब्लॉक भी एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन दैट 900 वाज फीलिंग इन। तो आप चेक करो कि 900 वाली ब्लॉक फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रही थी, म्यू R2 वाज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो यू कैन डायरेक्टली से कि चूंकि ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिवली उल्टी चल रही हैं, तो फ्रिक्शन ऑन द 300 न्यूटन ब्लॉक विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? Did you understand this or not? Yes sir. इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये 300 वाली ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे को क्यों लग रही है? क्योंकि 900 वाली ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लग रही थी, तो 300 वाली पे नीचे को ही लगेगी। ठीक है, रिलेटिव मोशन है ना दोनों के बीच में, दोनों भाई 300 वाली रुकी हुई है। आप इसको ऐसे भी सोच के देखो कि अगर सरफेस पे एक ब्लॉक रुकी हुई है, आपसे ये पूछता है कोई कि मैं इसको यहां को खींच रहा हूं भाई, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन यहां लगेगी। जमीन पे फ्रिक्शन कहां को लगेगी? जमीन पे फ्रिक्शन इधर को लगेगी। यही सेम सीन है यहां पे। ठीक है, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। यू हैव कंसिडर्ड द वेट, यू हैव कंसिडर्ड द नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इज देयर एंड म्यू R2 is there. Once again,
the desired coordinate system for inclined planes is like this. So this is the horizontal direction and this is the vertical direction. So you see that tension and mu R2 are already in the horizontal desired direction. Your normal reaction R2 is already in the desired vertical direction. So what you do is you simply resolve these 300 Newton into two components. And since the angle of inclination is theta, you know that this is going to be theta. So this one will be 300 cos theta. And this one will be 300 sin theta. Okay, but again we have to remember, as soon as we draw the components, we have to remove force from picture. ये गायब कर दी. So now let me remove this also. This is the free body diagram with the appropriate directions of all forces. कितनी forces है? 1, 2, 3, 4, 5 forces है. But now you have to act intelligently. कैसे intelligently act करना है? इसके ऊपर भी अंधाधुंध सीधे FH equal to 0 and then FV equal to 0 लगाने की बजाय आप ये देखो कि क्या ये दोनों इक्वेशन लगाने की जरूरत है क्या? What are you trying to find? You already have an equation from which you can get the value of. See, ये इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है. म्यू पता है 1/3 है, तो इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूं. देखो म्यू को मैं 1/3 से रिप्लेस कर देता हूं. अब देखो, अब मेरे को सिर्फ ये R2 पता करना है. R2 जैसे ही पता चल जाएगा मेरे को थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगी. तो अब मैंने ये जो दूसरा FBD बनाया है 300 के ब्लॉक का, ये किस लिए बनाया है? ताकि मैं इसमें से R2 को पकड़ सकूं. That is the only thing that I want. तो अब R2 कौन से डायरेक्शन में लग रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है. तो आपको ये इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है. तो इसमें ये टेंशन मेंशन जो लग रही है इसको सबको छोड़ दो आप. You simply develop this equation and now tell me how many forces are there in the vertical direction? Only 2. 2. Only 2 forces are there. R2 is acting upwards and 300 cos theta is acting downwards. ठीक है, तो आपको सीधे सीधे एक चीज मिली कि नहीं मिली? R2 is equal to 300 cos theta. It is equal to 300 cos theta. अब आपको R2 मिल चुकी है. Now with this information you go back to your original problem. R2 is 300 cos theta. अब यहां पर पुट कर दो. So now if I use this equation, this is 300 cos theta upon 3 plus 1 upon 3 times 300 cos theta plus 900 cos theta equal to 900 sin theta. ठीक है, अब क्या निकलेगा? ये हो गया. तो दिस इज 100 cos theta प्लस 3 से डिवाइड करें 100 300. So this will be 400 cos theta is equal to 900 sin theta. Go on solving. 500 cos theta is equal to 900 sin theta. आगे बताओ क्या करूं? यहां तक तो कर दिया मैंने सॉल्व. क्या करेंगे?
tan theta equal to 5/9. यस, वेरी गुड। आपको थीटा को पकड़ना है तो इंटेलिजेंस, देखो इससे आगे कोई किताब नहीं सिखा सकती। ये जो छोटी सी इंटेलिजेंस है ये आपको एज एन इंजीनियर, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स खुद लगानी है। टेक cos थीटा बिलो हियर एंड ब्रिंग 900 बिलो हियर। तो ये हो गया 500/900 इक्वल टू tan थीटा। अब आ गई आपके पास में theta is equal to tan inverse of 5/9. Now you use your calculator and see whether this is the answer you get. 29.05 degrees. Yes, sir. Tan inverse of 5/9. ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लो आप लोग। For a good practice of questions in friction, अभी अपन ने वेज फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन और बेल्ट फ्रिक्शन पढ़नी बाकी है, बट ऑल दोज फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ और जो भी अननोन वैल्यू है उससे आप खुद ही पता कर लो। तो एक तो ये क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल 5.1 नोट कीजिए। इसमें इंक्लाइंड प्लेन नहीं है बट द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस जो अपन ने अभी किया है। तो अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन को सॉल्व कर लिया है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल बच्चा होना चाहिए। दिस शुड बी अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पहले प्रैक्टिस करो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 5.1 फ्रॉम भाविकट्टी एंड देन नोट दिस डाउन ऑल्सो। ऑल द एग्जाम्पल्स इन फ्रिक्शन फ्रॉम भाविकट्टी 5.3, 5.4, 5.5, इनमें से कुछ प्रॉब्लम तो काफी टिपिकल भी है, बट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आप ओवर द वीकेंड हो या जब भी शाम को, रात को 8 बजे से पहले भी, कभी भी आप अगर मेरे को फोन करके डाउट पूछने की थोड़ी सी श्रद्धा रखें, आई विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, पर्सनल मीट पे आ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। लेकिन मेहनत बेटा आप लोगों को खुद को करनी है। मैं पीछे पड़ के किसी के नहीं पूछूंगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको जो जो एग्जाम्पल सॉल्व करने को देता हूं, those questions and similar questions are possible candidates in your examination, please remember। तो इसको नोट कर लो। 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8 all the questions of friction, ये वाले 5 पॉइंट वाले भाविकट्टी बुक में से। और किसी किताब को मत देखो, आप अभी इस टॉपिक के लिए सिर्फ भाविकट्टी रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन इनफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। फॉर प्रॉब्लम्स प्लीज रिवर्ट बैक टू मी एंड प्लीज वेट, आई विल टेक योर अटेंडेंस। आज का टॉपिक जो पढ़ाया और जिस तरीके से आपको फ्रिक्शन को डील करना सिखाया, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज टेल मी। सर क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके